أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جانوروں کو خوراک کون سی ڈالنی چاہیے، تھوڑی سی اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور کیسے ڈالنی چاہیے اور کیا ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جانوروں کو ظاہر ہے اپنی انرجی حاصل کرنے کے لیے، ہر جاندار کو اپنی انرجی حاصل کرنے کے لیے کچھ کھانا چاہیے، کچھ پینا چاہیے۔ تو اگر ہم خوراک کو ڈیوائیڈ کریں تو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 جانوروں کی خوراک، خاص طور پہ نمبر 1 چارہ، نمبر 2 ونڈا، اور نمبر 3 پانی۔ چارہ کتنا دینا چاہیے، ونڈا کتنا دینا چاہیے، اور پانی کتنا دینا چاہیے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ ویسے متوازن خوراک کے بارے میں نے پہلے بھی آپ سے بہت ساری چیزیں شیئر کی ہوئی ہیں، اور اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اور اس گفتگو کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے، انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں متوازن خوراک دینی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ملا کر کے جانور کی خوراک متوازن ہوگی: چارہ، ونڈا اور پانی۔ ان تینوں چیزوں سے جانوروں کو ملے گا کیا؟ جانوروں کو ملے گا پروٹین، جانوروں کو ملے گی فیٹ، جانوروں کو ملیں گے وائٹامنز، ان کو ملیں گے منرلز۔ تو یہ پروٹین، فیٹ، وائٹامنز، منرلز، واٹر اینڈ کاربوہائیڈریٹس، یہ انتہائی ضروری چیزیں ہیں جانوروں کو انرجی حاصل کرنے کے لیے، اپنے روزمرہ کے معمولات کو چلانے کے لیے، اور پھر جو مالک ہے، جو اس کو چارہ ڈال رہا ہے، ونڈا ڈال رہا ہے، پانی دے رہا ہے، اور اس پہ محنت کر رہا ہے، اس مالک کو ان ریٹرن کچھ دینا ہے اس جانور نے، اور وہ ظاہر ہے یا دودھ کی شکل میں ہے یا پھر گوشت کی شکل میں ہے، اور کبھی کبھی اگر بھیڑ بکریاں پالی جا رہی ہیں، بھیڑوں میں اون کی شکل میں بھی پروڈکٹس حاصل ہوتی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہم جانوروں سے، بہت سارے فائدے جانوروں سے حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں جب چارہ، ونڈا اور پانی ملا کے اور مکس بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے، متوازن طریقے سے ہم جانوروں کو پرووائڈ کریں گے، پھر جا کر کے ہمیں وہ فائدے حاصل ہوں گے جو ہم ان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ جو سبز چارہ ہے، سب سے پہلے ہم چارے پہ بات کرتے ہیں۔ سبز چارہ گائیوں کو کتنا چاہیے، اور بھینسوں کو کتنا چاہیے، اور سردیوں میں کتنا چاہیے، گرمیوں میں کتنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم موسم گرما کی بات کرتے ہیں۔ موسم گرما میں جو چارے اویلیبل ہیں ان میں ہے: نمبر 1 مکئی، نمبر 2 جوار، نمبر 3 سدا بہار، نمبر 4 باجرا، نمبر 5 رواں جسے کہتے ہیں، اور نمبر 6 گوارا، اور نمبر 7 ماٹ گراس۔ یہ 7 قسم کے چارے موسم گرما میں اویلیبل ہیں۔ تو اور ہمیں اب یہ بھی پتا ہونا چاہیے، اب ہم بھینسوں کو اور گائیوں کو کتنا چارہ ڈالیں، بھیڑوں کو، بکریوں کو کتنا چارہ ڈالیں۔ تو بھینسوں کو، جب ہم بھینسوں کی بات کرتے ہیں اور گرمیوں کے سیزن کی بات کرتے ہیں اور اس چارے کی بات کرتے ہیں، تو کم از کم 50 کلو چارہ ڈیلی چاہیے، روزانہ سے مراد 24 گھنٹے میں ایک بھینس کو کم از کم چارہ 50 کلو چاہیے، اور اس کو ہم آگے 60 کلو تک بڑھا سکتے ہیں۔ یہ رینج ہے بھینسوں میں، 50 سے 60 کلو چارہ بھینسوں میں موسم گرما میں چاہیے، اور گائیوں میں یہ جو چارہ ہے یہ 40 کلو سے لے کے 50 کلو تک ہے۔ یہ گائیوں کی رینج ہے، 40 کلو سے لے کے 50 کلو تک ہے۔ اور بھیڑوں بکریوں کی بات کریں تو 6 گنا کم کر لیں، تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کتنا چارہ چاہیے بھیڑوں بکریوں کو۔ میڈیسن میں بھی تقریباً یہی رول اپلیکیبل ہوتا ہے، لیکن میڈیسن میں بعض اوقات کچھ میڈیسنز ایسی ہیں جو گائیوں اور بھینسوں سے 6 گنا سے لے کے 10 گنا کم ڈوز تک ہم دیں گے۔ 10 گنا کم ڈوز بھی بھیڑوں بکریوں میں چلتی ہے کچھ میڈیسنز کی، اور کچھ میڈیسنز ایسی ہیں جو دیسی ہیں، خاص طور پر ہربل میڈیسنز ہیں، ان کی ڈوز تقریباً 6 گنا کم ہوتی ہے بھیڑوں بکریوں میں گائیوں اور بھینسوں کی نسبت۔
तो ये खैर ज़िमनी बात आ गई। तो हमने अगर मौसम गर्मा में इन चारों में से कोई चारा डालना है अपनी गायों को, भैंसों को, भेड़ों, बकरियों को, तो इस रेशो से डालना है। अच्छा, जब मैं ये बात करता हूँ कि रोज़ाना की ये ज़रूरत है भैंसों की कि 50 से 60 किलो तक चाहिए, 40 से 50 किलो तक गायों को चाहिए, और 6 गुना कम चारा कम से कम चाहिए भेड़ों को और बकरियों को, तो हम इसके साथ ये बात भी हमें ऐड कर लेनी चाहिए कि जनाब आला इसके साथ हमने सिर्फ इसको चारे पे नहीं रखना, हमने इसके साथ तूड़ी भी ऐड करनी है। तूड़ी भी जानवरों की खुराक में ऐड करनी है, और रोज़ाना ये तूड़ी तकरीबन 5 किलो तक ऐड करनी चाहिए, 5 किलो तक ऐड करनी चाहिए। लेकिन ये भी एक रेंज है, मैक्सिमम 5 किलो तक आप ऐड करें, लेकिन मिनिमम लेवल, कम से कम लेवल 2 किलो है। 2 किलो से 5 किलो तक रोज़ाना गायों को, भैंसों को तूड़ी चाहिए, और इसी तरह 6 गुना कम कर लें, तकरीबन आधा किलो बनेगा भेड़ों बकरियों को, वो भी चाहिए। ठीक है। अच्छा, जब रोज़ाना हम बात करते हैं कि ये चारा चाहिए, तो रोज़ाना से मुराद ये है कि 2 टाइम हमने चारा डालना है गायों को, भैंसों को, और उन 2 टाइम का वक्फा कम अज कम 10 घंटे होना चाहिए। खुराक डालने का जो वक्फा है गायों को, भैंसों को चारा डालने का जो वक्फा है वो कम अज कम 10 घंटे होना चाहिए। 10 घंटे से 12 घंटे तक आप उसकी रेंज कर लें। ये बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। उसकी वजह ये है, मेरा फोकस उन ब्रीडर्स पे है जो अभी काम स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, और अभी थोड़े से उनको प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं और उनको मसाइल दरपेश हैं, तो थोड़ी सी उनके लिए हेल्प हो जाएगी। तो कम से कम 10 घंटे का वक्फा रखें, और ये 50 से 60 किलो आप भैंस को चारा डालें गर्मियों में, 2 हिस्सों में करके 10 घंटे का वक्फा करके, और साथ ऐड करनी है तूड़ी 2 से 5 किलो तक, आधी सुबह डालेंगे आधी शाम डालेंगे, 10 घंटे के वक्फे से गायों को भी, भैंसों को भी, भेड़ों को भी, बकरियों को भी। और ख़ास तौर पे लेकिन वो जानवर जो चराई वाले हैं, ख़ास तौर पे हमारी भेड़ें और बकरियां, हमारे जो लोग हैं, ब्रीडर्स हैं, वो चराई पर भी ले जाते हैं। तो जो चराई वाले जानवर हैं वो तो चराई वाले जानवर हैं, हम अभी फोकस कर रहे हैं उन जानवरों पे जो चराई वाले नहीं हैं, जो फार्म पर मौजूद होते हैं और फार्म पर पलते हैं। तो जनाब, अब हम थोड़ी सी बात ये करते हैं कि मौसम सरमा में कौन कौन से चारे अवेलेबल हैं। मौसम सरमा में बरसीम होती है हमारे पास, नंबर 1, नंबर 2 लूसर्न होती है, लूसन जिसको कहते हैं, असल में लूसर्न है, और तीसरे नंबर पे जई, और चौथे नंबर पर राई ग्रास। ये 4 किस्म के चारे ज़्यादा अहम हैं जो मौसम सरमा में होते हैं। मौसम सरमा में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स, ज़रूरत चारे की जानवरों को ज़्यादा होती है। मसलन अगर वहाँ 50 से 60 किलो भैंसों को चारा चाहिए था गर्मियों में, तो यहाँ सर्दियों में ये 60 से 80 किलो तक चाहिए, कम से कम 60 किलो चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 80 किलो चाहिए। और इनको 2 हिस्सों में हमने डिवाइड करना है, आधा चारा सुबह डालना है, आधा चारा शाम को डालना है, और तकरीबन 10 घंटे का वक्फा कम से कम ज़रूरी है, 10 घंटे का वक्फा ज़रूरी है। भैंसों में जहाँ वहाँ पे रेंज थी चारा डालने की 40 से 50 किलो हमने आपको रेंज बताई थी गर्मियों में, सर्दियों में ये रेंज बढ़ जाएगी, ये 50 से 60 किलो हो जाएगी, क्योंकि सर्दियों में जानवर को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए और अपनी पैदावार देने के लिए, दूध की पैदावार, गोश्त की पैदावार के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। साथ में तूड़ी लाजमी मिक्स किया करें, ठीक है जी। और उसकी रेंज हमने बताई कि 2 से 5 किलो तूड़ी लाजमी दें। ये बात हो गई चारे की, सब्ज चारा और तूड़ी की। अब हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं वंडा। ये भी उसकी खुराक में शामिल है, जानवरों की खुराक में वंडा भी शामिल है। हम उसको मुतवाजन खुराक देना चाह रहे हैं जानवर को। तो सब चारे की रेंज मैंने बता दी, तूड़ी की रेंज बता दी, अब वंडे की रेंज सुन लीजिए। ये भी हमने उसी चारे में ऐड करना है। वंडा सब चारे के साथ, तूड़ी के साथ ऐड करके खिला सकते हैं, या
थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद में भी खिला सकते हैं। तो वंडा क्या है? वंडा असल में कंसंट्रेट डाइट है। इसमें प्रोटीन्स ख़ास तौर पे फोकस की जाती हैं ताकि प्रोटीन की जो ज़रूरियात हैं जानवर की वो ज़्यादा पूरी हो सके। तो रूल ये है कि जो जानवर दूध दे रहा है तो उसका दूध जो है उसको हमने देखना है कि अगर एक जानवर 3 लीटर दूध दे रहा है, गाय है या भैंस है, तो उसका हक है कि उसको 1 किलो वंडा लाजमी दिया जाए 24 घंटों में, आधा किलो सुबह और आधा किलो शाम। और अगर वो 6 किलो दूध दे रहा है तो उसका हक है कि उसे 2 किलो वंडा देना चाहिए, आधा किलो सुबह आधा किलो शाम। और अगर भेड़ बकरियों की हम बात करें तो वही 6 गुना कम वंडा उनको भी चाहिए होता है। ये भी हम उनकी खुराक में शामिल कर सकते हैं या खुराक में चारे में शामिल कर सकते हैं। अगर उसमें शामिल ना करें तो थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद में अलहदा से भी खिलाया जा सकता है वंडा। ठीक है जी, डिपेंड करता है कि ये फार्मर किस हिसाब से अपने जानवरों को ग्रो करवा रहा है। ये जानवर वो हो गए जो कि दूध देने वाले हैं। अब आते हैं जनाब वो जानवर जो कि दूध देने वाले नहीं हैं और सिर्फ उनको हम मीट पर्पस के लिए, गोश्त की पैदावार के लिए फरब्बा कर रहे हैं, मसलन बछड़े हैं, कट्टे हैं। तो वो जानवर जिनका वजन 100 किलो है, तकरीबन 2.5 मन है, 2.5 मन वाले जानवरों को हक है उनका कि 1 किलो वंडा दिया जाए, आधा किलो सुबह आधा किलो शाम, 10 घंटे के वक्फे से, कम से कम 10 घंटे के वक्फे से 12 घंटे का वक्फा भी किया जा सकता है। और अगर उसका वजन 200 किलो तक हो गया है और अभी हमारे पास वो जानवर मौजूद है, बिका नहीं है, और हम उसको मजीद कुर्बानी के लिए पाल रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं और उसको फरबा कर रहे हैं, तो वनडे की मिकदार डबल हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमने अपने गोश्त वाले जानवरों को पालना है। जबकि वो जानवर जो कि न दूध दे रहे हैं और ना ही वो गोश्त के मकसद के लिए हम उनको ग्रो कर रहे हैं, फरब्बा भी नहीं कर रहे, खुश्क हैं जानवर, मर नर नर सॉरी जो मादा जानवर हैं वो खुश्क हो जाते हैं दूध देने के बाद, और खुश्क हैं मतलब दूध नहीं दे रहे, लैक्टेटिंग नहीं है, तो उनको भी वंडा देना चाहिए। और कम से कम उनको 1 से 2 किलो वंडा रोजाना देना चाहिए। इसमें ये बात नोट रखें कि वंडा जब आप स्टार्ट करवाएं जानवर को तो थोड़े से शुरू करवाएं, 1 छटांग 1.5 छटांग और आध पाव से शुरू करवाएं, 2-3 दिन तक वही रेंज रखें और फिर उसके बाद उसकी मिकदार बढ़ाते जाएं। और मतलूबा मिकदार जितनी उसका हक बनता है, जिस तरह मैंने अभी बताया कि उनका हक किस तरह का बनता है कि 3 किलो वाले को 1 किलो लाजमी चाहिए, 6 किलो दूध देने वाले को 2 किलो लाजमी चाहिए, 9 किलो वाले को 3 किलो लाजमी चाहिए, 2.5 मन वाले को 1 किलो लाजमी चाहिए, 5 मन वाले को कितना 2 किलो लाजमी ये वंडा चाहिए। और ये हमने चारे में मिक्स करके खिला सकते हैं, हम इनको अलहदा से भी खिलाया जा सकता है। तीसरे नंबर पे मैंने बात की कि पानी हर वक्त मौजूद होना चाहिए फार्म पे, हाउस में मौजूद होना चाहिए, और पानी फ्रेश होना चाहिए हर वक्त। ये ना हो कि सर्दियों का मौसम है और ठंडा पानी वो पीते रहें, बीमार हो जाएंगे। गर्मियों का मौसम है और हौज में पानी खड़ा है और वो गर्म हो जाता है, बीमार हो जाएंगे। तो सिस्टम ऐसा लगाएं कि जी हर टाइम एक तो अवेलेबल हो पानी और दूसरा फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी अवेलेबल हो जानवरों के लिए। तो इससे उनका निज़ाम इन्हज़ाम और बाकी जिस्मानी तमाम निज़ाम जो हैं जानवरों के बिल्कुल ठीक रहेंगे। जब हम इस तरतीब से सब्ज़ चारा, वंडा और पानी देंगे तो इसका मतलब है हम जानवरों को मुतवाज़न खुराक दे रहे हैं। और अगर हम मुतवाज़न खुराक दे रहे हैं इसका मतलब है हम जानवरों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं। तो उसकी बरकत हमें भी मिलेगी बसूरत मनाफ़ा और बसूरत दुआ। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।